A very good afternoon to you all. It is with great pleasure that I welcome you all to the fourth episode of Viksit Vision series with MLA Sri Shagun Parihar ji. Today, we are honored to have as our co-host Mr. Sharan Sethi sir. He has so many feathers in his cap. Talking about his feathers, so he is a journalist, author, and a documentary filmmaker, currently associate editor at Swarajya magazine. He has reported from conflict zones like Afghanistan and Chhattisgarh, and his work focuses on geopolitics, society, and security. His documentary Forgotten 59 and Kannada book have received critical acclaim. So, I open the floor for discussion to you, Mr. Sharat. Thank you so much, Vaishali ji. I hope everybody is staying safe. First of all, these are testing times for everyone, but a very warm welcome to all of you. Let me begin by thanking the Ministry of Youth Affairs and Sports for organizing this webinar series with impact leaders who have proven themselves time and again in their own respective fields. And today, one such person joins us, especially at such testing times, to give her words of motivation to all the youngsters from the country. Today, we are privileged to be joined by a distinguished guest whose inspiring journey reflects not only resilience but also determination and visionary leadership in public service. It is with great pleasure that I welcome Sushri Shagun Parihar ji, the youngest elected member of Legislative Assembly from Jammu and Kashmir, to this session of Viksit Bharat Vision series. Shagun ji, a very warm welcome to you. Thank you so much. Shagun ji, your remarkable rise to the leadership, right? It has been marked by academic excellence, a lot of personal courage, and a sense of commitment to your people. So let me begin by asking you this, especially at a time when the country is facing tensions with our beloved neighbor to the west, and especially in places like Jammu when there is heightened tensions and people are living in fear. आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश की युवा से और देश के लोगों से? I think we should remember our past. हमें याद रखना चाहिए कि हमने इतिहास में अपने पूर्वजों को किस रूप में देखा है. हमारे लिए रानी लक्ष्मीबाई एक एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप, शिवाजी चौहान. हमारे लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी जो हम देख के इस टाइम को हम जो है वो ओवरकम कर सकते हैं. इस टाइम हमारे साथ बहुत सी मुश्किलें आ रही है क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है. पाकिस्तान हमेशा से ही क्रूरता से भरा हुआ मुल्क रहा है, जिसने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया. लेकिन दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर कि यहाँ के पॉलिटिकल माइंडसेट के जितने भी लोग हैं, सब लोग एक हैं. सब लोगों ने फर्स्ट टाइम ये जो हमारा अटैक हुआ बेसरन में, तो उसको कंडम किया. सब लोगों ने पाकिस्तान का तिरस्कार किया. पाकिस्तान ने धर्म के आधार पे हिंदुस्तान को बांटने की जो कोशिश की थी, इस कोशिश में वो नाकाम हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हो चुका है. और इस टाइम पे हम सब लोगों को पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हमें अपने इतिहास के पन्नों को पलटा के देखना चाहिए. हम महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की संतानें हैं. हमें अपने पूर्वजों का इतिहास देखना चाहिए और मुझे लगता है वो इतिहास हमें प्रेरित करने के लिए काफ़ी है. ऐसी सिचुएशन में व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, आप तो ट्विटर तो यूज करते होंगे, तो इतना कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में. हाउ डू यू स्टे काम एट अ सिचुएशन लाइक दिस, शगुन जी? बिकॉज हम लोग ना, जो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट एरिया से बाहर है, वी डेवलप अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट. और मैं अपने साउथ इंडियन मित्रों से भी यही कह रहा था that the north has borne the brunt of the invasions for so many years, and this is just one example of it. देखिए, इस तरह की सिचुएशन में हमें
सबसे पहले तो कूलली और कामली बिहेव करना चाहिए। अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आती है जिससे सोसाइटी में पैनिक क्रिएट होता है, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना चाहिए पूरे एनवायरनमेंट में। जो लोग टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हैं, टेक सेवी हैं, उनको एक पॉजिटिव मैसेज अगर वो स्प्रेड करेंगे, जैसे हमने कोविड-19 जैसे पैंडेमिक को कवर किया, उस टाइम पे भी भारत जो है वो लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा था। भारत में कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। जब इतनी बड़ी आपदा के टाइम पे हम लोग एकजुट होके रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या मजाल है। पाकिस्तान तो एक मतलब मैं ये कह दूं कि इकोनॉमिकली भी साउंड नहीं है, टेक्नोलॉजिकली भी साउंड नहीं है, और न्यूक्लियर बेसिस पे देखें तो वहाँ पे भी पाकिस्तान फेल है। देखिए, इस टाइम पे पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर को गाजा बना देने की, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, हमारा इस टाइम पे जितना रक्षा का जितना भी स्तोत्र चल रहा है S-400 की वजह से, पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी एक भी मतलब मैं कह दूं कि हमारा जानी नुकसान जिस हिसाब से पाकिस्तान ने सोचा था उस हिसाब से नहीं हुआ। मतलब हमारी गवर्नमेंट सक्षम है हर हमले से डील करने के लिए। तो मैं यही कहूँगी, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग नेगेटिव, हमें अपना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए और एक पॉजिटिविटी से चलना चाहिए। धन्यवाद शगुन जी। शगुन जी, आई थिंक बाय मिस्टेक आपका वीडियो शायद स्विच ऑफ हो गया, क्या आप ऑन कर सकते हैं? ओके, थैंक यू। शगुन जी, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रिक्वेस्ट है आपसे, और वो ये है कि आप इतना डाइवर्स प्रोफेशनल लाइफ से आते हैं, लेकिन यू बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट वुमेन दैट टू रिप्रेजेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, और वो भी किश्तवाड़ सीट से, जो सीट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू विन माना जाता है, और वो भी आपने चुनाव तब की जम्मू एंड कश्मीर होम मिनिस्टर के खिलाफ लड़े थे। यू नो, टेल अस योर जर्नी इज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। कुछ लोगों को पता होगा कि शगुन जी और उनके परिवारों के सदस्य भी बहुत त्याग दिया, बट आई थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, इफ यू कैन एक्सप्लेन योर जर्नी, वी वुड बी वेरी ऑनर्ड टू लिसन टू दैट। देखिए, ये बात सही है कि मेरा चुनाव यहाँ के होम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। उन पॉलिटिकल करियर मेरी एज के बराबर है ऑलमोस्ट, और उनकी तो एक लीगेसी है। उनके फादर साहब मिनिस्टर थे, वो खुद होम मिनिस्टर रहे, और काफ़ी बार उन्होंने मतलब किश्तवाड़ से, मतलब उनकी एक लीगेसी थी जो चुनाव जीतने की थी। तो किश्तवाड़ से जब भाजपा ने मेरा टिकट अनाउंस किया, तो किश्तवाड़ में चुनाव भाजपा और शगुन परिहार नहीं लड़ रही थी। किश्तवाड़ में चुनाव किश्तवाड़ के लोग लड़ रहे थे, यहाँ की पब्लिक लड़ रही थी। तो यहाँ की पब्लिक में इस तरह का इमोशनल अटैचमेंट मेरे साथ हुआ। मतलब लोग इस तरह से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं जिस भी जगह जाती थी तो हमारा ऑलमोस्ट 18 दिन का ही टाइम पीरियड था जो इलेक्शन कैंपेन का था, और वो बहुत कम था क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, तो एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में भी 8-8 घंटे लगते हैं। तो उस डिस्टेंस में भी लोग मेरे साथ आधी रात में चल रहे होते। वहाँ के गांव की महिलाएं जो मुझे प्यार देती थी, वो प्यार ही इस इलेक्शन को जिताने का सबसे बड़ा, मतलब मैं कह दूं कि हथियार है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। इलेक्शन लोग लड़ रहे थे, बातें लोग कर रहे थे, वोट लोग मांग रहे थे, और हर कोई यही कह रहा था ये हमारी बेटी का चुनाव है। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सम्मान दिया, और ये उन लोगों की ही वजह से है कि आज शगुन परिहार कुछ बोल पाते। चुन के आए आज तक, वो चैलेंजेस क्या रहा है इस रास्ते में, यू नो, स्पेशली बिकॉज समबडी सो यंग एंटरिंग पॉलिटिक्स, वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग ही खेल होता है। सो व्हाट आर दोस चैलेंजेस, स्पेशली since it is a young woman who had an academic orientation being in politics? देखिए, चैलेंजेस तो बीइंग ए यंग वुमेन बहुत सारे होते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, मतलब ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, जिस क्षेत्र से आती हूँ, इस क्षेत्र में मुझे लगता है सब लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तभी जाके हम लोगों ने यहाँ पे सरवाइव किया, और पलायन की स्थिति यहाँ पे ऑलमोस्ट थी, क्योंकि कभी कभार तो हमारे यहाँ पे पूरी की बसेस को उतार के आइडेंटिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उनको मार दिया जाता था।
कई बार कई बारातें जाती थी शादियों में, तो पूरी की पूरी बारात का नरसंहार होता था, महिलाओं को छोड़ दिया जाता था, पुरुषों को गला काट के मारा जाता था या बहुत बर्बरता से मारा जाता था। मैं बता भी नहीं सकती कि हम लोगों ने क्या क्या नहीं झेला है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बाद जब मैंने अपने पिताजी और अपने चाचा जी को खोया और जिस ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ, और उसके बाद जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, मेरे लाइफ को देखने का एक नज़रिया ही बदल गया। तो आज मैं वो सब चीज़ें, कोई रोता है या किसी के साथ कुछ चीज़ गलत होती है, तो वो एहसास मुझे होता है कि इसके साथ क्या गुजर रहा होगा, ये किस फेज से आगे गुजरेगा या आगे ये कौन कौन सी परेशानियां झेलेगा। तो ये सब परेशानियां जो हैं, ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी। और आज भी अगर मैं किसी को परेशान देखती हूँ, वो दुख में देखती हूँ, तो वो चीज़ें मैं फील करती हूँ। मतलब एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि ये लोग भी मेरी तरह ही दुखी हैं, तो कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं कि इनका दुख खत्म हो, इनका दुख कम हो और किसी ना किसी तरीके से ये लोग स्टेबल हो। स्पेशली किश्तवाड़ की महिलाएं जो हैं, दे फेस वेरी डिफरेंट चैलेंजेस, क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफिक्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, काफ़ी डिफरेंट है। यंगस्टर्स भी हैं जो और भी फ्रीडम चाहते हैं और भी डेवलपमेंट चाहते हैं, एंड वो अलग अलग माइंडसेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिलेगा, और किश्तवाड़ ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो हाउ डू यू टेक एवरीबडी अलॉन्ग, शगुन जी, स्पेशली कीपिंग द वुमेन इलेक्टोरेट इन माइंड? I'm really enjoying hard to meet up the expectations of my people. यहाँ पे लोगों का माइंडसेट एक अलग है, लोगों को एक विजन देने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि किश्तवाड़ जो है एक माउंटेनियस रीजन है, फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। किश्तवाड़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत सी कोशिश कर रही हूँ कि किश्तवाड़ को टूरिज़्म मैप पे लाया जाए, यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया जाए। हमारे यहाँ दक्षिण में एक बर्मा पीक है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लोग विज़िट करें। इसके अलावा भी यहाँ पे गहन वाटरफॉल है। ये सारी चीज़ों में जब मुझे लगता है बाहर से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, एक थॉट एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब जाके लोगों को लगेगा कि बाहर की दुनिया भी एक दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है, किश्तवाड़ से बाहर भी एक दुनिया है। तो वो सारी चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। स्पेशली यहाँ की वुमेन्स जो हैं, अगर दूर दराज गाँव की मैं औरतों तो मतलब दे फेस रियली हार्ड चैलेंजेस। मतलब चैलेंजेस इस तरह के हैं कि मतलब पूरा दिन औरतें खेती बाड़ी करती हैं, और खेती बाड़ी करने के बाद भी मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की लेडीज़ हैं, इतना पैदल चलती हैं। मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से वहाँ पे, अभी हमारे यहाँ पे स्कूल्स भी, हाई स्कूल्स हैं, हाई सेकेंडरीज नहीं है, तो वहाँ पे एटलीस्ट मतलब हाई सेकेंडरीज हों, हमारी वुमेन जो हैं वो एजुकेटेड हों, क्योंकि जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगी तब तक वो सोसाइटी को लीड नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले मेरा यही फोकस है कि जितना हो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्ट्रॉन्ग करें, ताकि एटलीस्ट हमारी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हों, सेल्फ डिपेंडेंट हो, उन्हें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी तो वो कॉन्फिडेंट होंगी और उनका फ्यूचर भी आगे सिक्योर होगा। जैसे हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, प्रधानमंत्री जी ये नया कश्मीर का एक विजन लेके चल रहे हैं, तो इन दैट डायरेक्शन अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड। आज श्रीनगर एक स्मार्ट सिटी भी है, जम्मू भी है। जम्मू का क्या स्पेसिफिकली प्लान है जिसमें किश्तवाड़ का भी एक ये हो सकता है? व्हाट इज नया जम्मू लाइक? व्हाट इज योर विजन फॉर द रीजन, और आप वो लॉन्ग टर्म में क्या देखना चाहते हैं? हम अपने प्रधानमंत्री जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं और उनकी वजह से 370 जो है, जिसने जम्मू कश्मीर को हमेशा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से रोका था, ये उनकी विजनरी लीडरशिप का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर को ये 370 के कलंक के नाम से मुक्ति मिली, और आज प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी की ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का महिला सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की महिलाओं को लेके बढ़ावा देने की वुमेन एम्पावरमेंट की योजना हो, आज हमारे लोगों को हर योजना का लाभ मिल रहा है। और ये मैं खुद देख रही हूँ। इस टाइम पे मेरे यहाँ पे सड़कें नहीं बनी थी। आप मुझे बताइए कि जहाँ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इस 370 के कलंक ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तक सड़कें नहीं पहुँचने दी।
आज मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी भी दक्षिण के 3 इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। आज हम बात करते हैं, आज हमें प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वहाँ पे नेटवर्क होगा, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन पहले हम ये चीजें सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास एक विजनरी लीडरशिप नहीं थी। आज हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया को, ट्रांसफॉर्म कर रहा है किश्तवाड़ को। और मैं चाहती हूँ जिस तरह चंडीगढ़ एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है, किश्तवाड़ भी उसी तरह पे जाना जाए। जिस तरह शिमला की, जिस तरह आप देखेंगे ना, जैसे शिमला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, किश्तवाड़ को भी हम उस तौर पे बढ़ावा दे सकते हैं। हम यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे एक्सप्लोर करें तो उससे भी हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। हमारे यहाँ के एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूवमेंट की नीड है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हमारा एजुकेशनल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। हमारे यहाँ पे एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं वो आज स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नए स्टार्टअप्स को मिल रहा है मौका, एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो है हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ने राज किया और उन ब्यूरोक्रेट्स ने पर्टिकुलर पार्टी की लीडरशिप में राज किया, जिससे हमारे कुछ एरियाज की डेवलपमेंट ही नहीं, क्योंकि यहाँ के कुछ नेताओं ने सिर्फ अपने वोट बैंक को डेवलप किया और जो उनके वोटर्स नहीं थे उन एरियाज का विकास नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का विजन जो है वो हर गांव तक, हर घर तक विकास की योजनाओं को लाने का है। मैं चाहती हूँ कि उस विजन पे हम काम करें, वैसा एक रोड मैप तैयार हो जिससे हमारा रूरल जम्मू कश्मीर जो है उसकी डेवलपमेंट हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ओवरऑल हम देखते हैं कि कश्मीर का एक मेन जो एरिया है, जो लाल चौक का एरिया है, जो मेन 2-4 जगहें होंगी उनमें डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ओवरऑल कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ओवरऑल कश्मीर में आप देखेंगे आज भी महिलाएं सड़कों में पानी भर रही होती हैं, तो कहाँ गया विकास। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी का विजन यहाँ पे लागू हो रहा है तब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर को विकास की धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। आज एक आम से परिवार की बेटी, मतलब मैं तो एक आम से परिवार से हूँ ना, कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक आम से परिवार की बेटी, एक शहीद परिवार की बेटी जिसके सर पे पिता नहीं, जिसके सिर पे चाचा नहीं, एक ऐसी बेटी को चुनाव लड़वाया। और न सिर्फ लड़वाया, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में मैंने चुनाव जीता भी, और जीतना भी, ये चुनाव जीतना किश्तवाड़ की जनता ने जीता है। और पूरा विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी एक आम परिवार की बेटी को नेतृत्व करने के लिए खड़ा कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जी किश्तवाड़ को भी एक न एक दिन टूरिज्म मैप पे जरूर लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वो डेवलपमेंट ऐसे ही हो और जम्मू के लोगों को वो सुविधाएं मिले जो पिछले 50-60 सालों में कुछ देखने को नहीं मिला है। For the audience, I have a small request. We will have some time to have a Q&A with Shagun ji after 5 or 10 minutes. तो आपको अगर कुछ सवाल है जो आप शगुन जी से पूछना चाहते हैं वो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। Our team will make sure they notice the questions and we will ask Shagun ji those. One thing, Shagun ji, what people also are asking is कि आप एक quote unquote ordinary citizen थी जो politics में आ गई, so all of a sudden वो lifestyle का भी change होता है ना, because politics में all of a sudden there are hundreds of people queuing up in front of your house, वो एक discipline आ जाता है। So how has it changed your lifestyle, या अभी भी कुछ आपको pursue करने के लिए time मिलता है? देखिए, लाइफस्टाइल तो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, एकदम से यू टर्न लग जाता है आपकी लाइफस्टाइल को। मतलब आपकी लाइफ आपकी नहीं रहती, आपकी लाइफ पब्लिक की हो जाती है और 24/7 आपको पब्लिक की सर्विस में खड़े रहना है, लोगों के लिए काम करना है। आपके पास यू डोंट इवन गेट द टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, मतलब बिल्कुल आप अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। तो इस तरह देखती थी, मतलब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने बहुत से दुख झेले, बहुत से, मतलब मैं कह भी नहीं सकती मैंने क्या क्या झेला है। तो इस जर्नी में आप ये देखेंगे कि आप अपने आप को भूल जाते हैं और आप कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। और उस चीज़ें लगता है कि आप अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाते, वो टाइम ही नहीं मिल पाता।
और जम्मू को अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो क्या क्या नए लोगों को जो जम्मू नहीं आए अब तक, व्हाट वुड योर आइडिया बी फॉर दोस पीपल? क्या क्या देखना चाहते हो नहीं है, और व्हाट आर सम ऑफ दोस ऑफबीट प्लेसेस दैट पीपल कैन एक्सप्लोर? आपकी आवाज ऊपर करके कुछ सुनाई नहीं दी, आप प्लीज रिपीट करेंगे? I was asking कि if somebody is coming for the first time to Kishtwar or Jammu, what are those places you would recommend people to visit? कोई खास ऐसे खाने की जगह हो, देखने की जगह हो, आप बताएंगे? तो बहुत सी जगहें हैं, जैसे कि यहाँ पे अलीगढ़ है, यहाँ पे मुगल मैदान है, यहाँ पे सरथल है, यहाँ पे पाडर है, यहाँ पे दच्छन है। मतलब किश्तवाड़ जो है ओवरऑल आप देखो तो बहुत सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मैं चाहूंगी कि लोग आए हमारे जम्मू कश्मीर में, विजिट करें, किश्तवाड़ विजिट करें, हमें अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, हम उनको होस्ट करेंगे। वी वेलकम यू ऑल। मैं वेलकम करती हूँ अपनी दिल की गहराइयों से कि सब लोग यहाँ विजिट करें, जम्मू कश्मीर को देखें, जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी देखें, यहाँ के लोग इस तरह से प्यार देते हैं, ये सब चीजें देखें। So Shagun ji, a lot of personal questions are coming to you from the audience. पहले तो ये है कि despite you have borne heavy losses on your personal side as well. You've lost family members, but despite that, entering politics even at a time जब अभी भी threat from terrorist forces still exist, how do you develop this mentality? How do you survive on a daily basis knowing you're in power, you are not safe? चीज तो है, बट मैं कह दूं कि ये डर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है जब आप लोगों का प्यार देखते हैं। तो मेरी जो जर्नी है इसमें जैसे ही मैं फील्ड में उतरी, लोगों ने मुझे जो प्यार दिया ना, मतलब अगर मैं वो चीज़ें बताऊं तो मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया था तब जब जिस पॉलिटिकल जर्नी में मैं उतरी, लेकिन जिस तरह का प्यार मुझे मिला, जिस तरह से लोग मुझे प्यार देते थे, अभी मैं कुछ कह ही रही होती थी तो लोग मतलब लोगों की भावनाएं इस तरह से उमड़ के आती थी कि लोग रो रहे होते थे और आंसू इस तरह नहीं निकलते किसी के। तो मतलब लोगों से एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड हो गया था। तो उस वजह से जिस तरह से मतलब लोगों ने, किसी ने कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं किया मुझ पे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो थी नहीं, तो फिर भी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि रात के 3-3 बजे तक गांव में महिलाएं मेरे साथ चल रही होती थी। और उस टाइम पे भी लोगों को खतरा था मिलिटेंसी का, क्योंकि किश्तवाड़ आप पता ही है यहाँ पे आतंकवाद का बहुत एक प्रचंड रूप यहाँ के लोगों ने देखा। तो वो सब चीज़ें जो हैं, मुझे मेरे अंदर तो पहले से ही डर था ही नहीं, क्योंकि हम मतलब इस तरह की फैमिली से आते हैं तो डर नाम की चीज़ हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन वो प्यार मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे घर में कुछ लोग आए थे, तो मैं सिटी में रात को अकेले गई थी राउंड पे, तो उन्होंने मुझे तो पहले उनको लगा मैडम अकेले कहाँ आएंगी, वो घर आए, फिर बोलते मैडम आप आए थे? मैंने कहा हाँ मैं आई थी। कहते हमने आपको बड़ी मुश्किलों से बनाया है, हम नहीं चाहते हम आपको खोएं, तो आप ऐसे अकेले मत चला करें। तो उस टाइम मुझे लगा कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मतलब वो सारी चीज़ जो मुझे मोटिवेट कर रही है कहीं खत्म हो जाता है। इंस्पिरेशन कौन है पॉलिटिक्स में, जिन लोगों को आप देखे इंस्पायर? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, बढ़िया। तो मुसादिक जी का एक क्वेश्चन है जो पुलवामा से है। हाउ डू यू हैंडल द ट्रोलिंग एंड द ड्रामा क्रिएटेड बाय द ऑपोजिशन लीडर्स, स्पेशली जब वो स्टेटमेंट्स लाइक औरत है नहीं कर पाएगी, so they use gender as a political tool during the campaign, and despite this, us knowing the fact that many and most of these opposition leaders are very wealthy, they enjoy luxurious lifestyles and they come from very big family.
ये बात सही है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं औरत है नहीं कर पाएगी। इवन मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो मेरे ऑपोजिशन में जो थे उनको यही लग रहा था, वो मतलब बहुत खुश थे कि उनको ये लग रहा था कि वो जीत जाएंगे और बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। और बहुत से लोगों को ये भी लगता था क्योंकि मैं घर से बाहर इससे पहले कभी ये चल ही नहीं पाएगी। लेकिन परमात्मा की कृपा रही, लोगों का प्यार रहा कि मैं अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को 18 दिनों में मैंने कवर किया और उसके बाद भी 2-3 बार मैं अभी तक अपने हर गांव को टच कर चुकी हूँ। तो ये जो लोग कहते हैं औरत है नहीं कर पाएगी या लड़की है नहीं कर पाएगी, या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि देखिए, अगर आपका इरादा सच्चा हो, आपका यकीन अपने भगवान पे हो, तो ये जितनी भी मुश्किलें, ये जितनी भी नाकामयाबियाँ लोगों को लगती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि आपका हौसला इतना बुलंद होता है कि कामयाबी आपके कदम खुद चूमती है। और शगुन जी, अभी वो चंडीगढ़ में भी एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहती है? क्योंकि आज भी माई भारत पोर्टल में सेम प्रोग्राम लॉन्च हुआ है एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर साइनिंग अप फॉर इट. So what would your piece of motivation to the youth be at a time when we have a national crisis? देखिए, मोटिवेशन के लिए हमारे पास इस समय पे बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो भी क्राइसिस है, चाहे वेदर इट इज़ इंटरनल और इट इज़ एक्सटर्नल, तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए भारतीय फोर्सेस सक्षम हैं, हमारी गवर्नमेंट सक्षम है। तो हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कि किसी भी चीज़ से हमें कतराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली हर चीज़ को डील कर रही है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, उनकी एक विजनरी लीडरशिप है। वो जानते हैं कि हर समस्या से कैसे उभर के बाहर निकला जाए। तो हमें इस तरह के माहौल में पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी लानी चाहिए अपने अंदर। हम लोग जो हैं, हमने अपना इतिहास देख लीजिए, हमारे महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसे लोग हमारे इतिहास में थे, तो हमें किससे घबराने की ज़रूरत है? रानी लक्ष्मीबाई जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास है, तो किससे हमें कतराने की ज़रूरत है? Excellently said. शगुन जी, लास्ट क्वेश्चन. बहुत सारे यंगस्टर्स जो माई भारत प्लेटफॉर्म में हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर एक 20 साल की लड़की या 25 साल का लड़का पॉलिटिक्स में सीरियसली एंटर करना चाहते हैं, जिसके पास ना कोई परिवार होगा, ज्यादा वेल्थ भी नहीं होगा, या किसी तरह की सपोर्ट होगा, वो लोग कैसे प्लान कर सकते हैं? व्हाट इज योर हैंडबुक, गाइड और योर ट्रिक फ्रॉम योर अर्थशास्त्र दैट यू कैन गिव टू यंगस्टर्स? देखिए, मैं यही कहूँगी कि हमें सच्चाई से चलना चाहिए, और ये जो वेल्थ है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा फील्ड है जहां आप जनता को सर्व करने आए हो, जहां आप लोगों के लिए हर समय आपको खड़े रहना है। तो मुझे लगता है ये लोग हैं जो आपको बनाते हैं, यही लोग हैं जो आपको प्यार और इज्जत दिलवाते हैं। ईमानदारी से लोगों की सेवा करिए, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फिर आपको अपने आप के बारे में कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप 24/7 जनता के बारे में सोच सकते हैं, तो आप पॉलिटिक्स में आइए, लोग आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत सम्मान देंगे। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी कि बाकी फील्ड्स के मुकाबले में पॉलिटिकल फील्ड जो है, ये हार्डशिप से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। यहाँ आप सही भी होंगे तब भी आपको गलत ठहराया जाएगा, लेकिन वो सब चीज़ें आपको बर्दाश्त करके आगे बढ़ना है, और जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर रहना है, और सच्चाई और ईमानदारी से चलना है। Thank you so much. You gave us your precious time, especially at a situation like this. Thank you for inspiring us with your story, with your journey, with your words. And I hope कि अगर हर एक शहर में एक नेता आपके जैसा हो, then I think India will be a much safer, much progressive country. Thank you so much for everything you have done. All mine. Thank you. Okay.